پاکستان میں آئے دن ممبروں کی شکایتوں اور جواب طلبیوں سے تنگ آ چکا تھا اور وہاں مزید رہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے ایک روز جب ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان صاحب نے فون پر کہا کہ میری بات ہو گئی ہے، ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، سر میرا ٹیمپو ٹوٹ گیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اس وقت تک نثار چیمہ صاحب آئی جی بن چکے تھے۔ انہوں نے بھی حاجی صاحب کو کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ ذوالفقار اس محاذ آرائی کے ماحول میں پاک پتن رہے۔ چند روز بعد مجھے تبادلے کے احکامات موصول ہو گئے۔ میری اگلی منزل مظفر گڑھ قرار پائی۔ ساہیوال کی نسبت مظفر گڑھ کا موسم گرم تھا، مگر میرا استقبال بہت ٹھنڈا ٹھار رہا، جس سے کچھ مایوسی ہوئی۔ دراصل ضلع کا ایس پی کوئی نہیں تھا، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کے پاس چارج تھا۔ وہ ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے۔ انہی پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی تھی۔ جو بڑی سرد مہری سے ملے اور مجھے بتایا کہ ایس ڈی پی او صدر ہونے کے ناطے شہر اور دیہاتی علاقے کے 6 تھانوں کا چارج میرے پاس ہوگا۔ چارج لینے کے بعد میں نے سب سے پہلے خان گڑھ تھانے کا دورہ کیا۔ خان گڑھ ملک کی انتہائی قابل احترام شخصیت نوابزادہ رسول اللہ خان صاحب کا آبائی قصبہ تھا، اور وہ جنرل ضیاء الحق کی مخالفت کی وجہ سے یہیں اپنی رہائش گاہ میں نظر بند تھے۔ میں نے نوابزادہ صاحب کے بارے میں ایس ایچ او سے سرسری پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ تھانے کچہری کی سیاست نہیں کرتے۔ یہ بات میرے قیام کے دوران بھی ثابت ہوئی کہ وہ ضلعی افسران کو بھی کسی کام کے لیے فون نہیں کرتے۔ ان کے بیٹے اور بھتیجے ملتے رہے، بڑے وزادار اور اعلیٰ روایات کے امین خاندانی لوگ ہیں۔ میں نے یہاں بھی بڑے جوش و خروش سے جرائم کے سد باب کی جدوجہد شروع کر دی۔ جب لوگوں کی سنوائی اور داد رسی ہونے لگی تو کھلی کچہریوں میں ہزاروں لوگ شریک ہونے لگے۔ میری تعیناتی کے 2 ہفتے بعد ضلع کا چارج مجھے سونپ دیا گیا، اور اس حیثیت سے ضلع کی دوسری تحصیلوں کوٹادو اور علی پور کے دورے بھی شروع ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خان بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ وہ پی سی ایس آفیسر تھے، مگر بہت سے سی ایس پی افسروں سے زیادہ معاملہ فہم تھے۔ بلدیاتی انتخابات ہونے والے تھے، اس لیے ہم دونوں تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ 1-2 میٹنگ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ڈیرہ غازی خان میں بھی ہوئی۔ کمشنر سردار محمد اسرف سکھیرا پرانی وضع کے بڑے مجے ہوئے افسر تھے، اور لاہور کی سٹی مجسٹریسی کے واقعات مزے لے لے کر سناتے رہتے تھے۔ ایک میٹنگ جس میں تمام ضلعوں کے ڈی سی اور ایس پی شریک تھے، انہوں نے انتخابات کے ممکنہ نتائج کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ میرے تجزیے سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور اس کے بعد ہر ایشو پر میری رائے کو بہت اہمیت دینے لگے۔ سیاسی طور پر مظفر گڑھ بہت درخیز ضلع رہا ہے۔ یہاں سے مشتاق احمد گرمانی اور ملک غلام مصطفیٰ کھر پنجاب کے گورنر، اور عبدالحمید دستی اور کھر صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اس وقت تک ملک غلام مصطفیٰ کھر کی مقبولیت کی وجہ سے کھر خاندان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کے ایک بھائی غازی کھر ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے، جو ایک بااصول آدمی تھے۔ افسروں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہوتا تھا، مگر میرے ساتھ بڑی عزت و احترام سے ملتے تھے۔ وہ جوان عمری میں ہی وفات پا گئے۔ ایک اور بھائی ایم این اے اور ایک ایم پی اے تھے۔ ایم پی اے غلام ربانی کھر تعلیم سے بالکل کورے تھے، اور انہوں نے درخواستوں پر صرف جی ربانی لکھنا سیکھ رکھا تھا۔ انہی کی تعلیم یافتہ بیٹی ہنا ربانی کھر بعد میں ملک کی پہلی خاتون وزیر خارجہ بنی۔ الیکشن سے 1-2 روز قبل میرے پاس ایک امیدوار کی درخواست آئی کہ کھر صاحبان کی اپنے گاؤں میں بڑی دہشت ہے، اور وہاں وہ اپنے مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے تمام امیدواروں کو تحفظ فراہم کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ پولیس افسر کی حیثیت سے میرے یہ پہلے انتخابات تھے، جن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن وغیرہ سے زیادہ مقامی پولیس کا غیر جانبدار ہونا زیادہ اہم ہے، اور ضلع میں تعینات پولیس افسر کسی امیدوار کو کس قدر فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مظفر گڑھ کا تجزیہ بعد میں میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ میں نے الیکشن ڈیوٹی پر تعینات ریگولر پولیس، رضاکاروں اور اسپیشل پولیس کی نفری سے ہر تھانے کی سطح پر جا کر خطاب کیا، اور انہیں واضح ہدایات دیں کہ آپ نے ہر صورت غیر جانبدار رہ کر امن و امان برقرار رکھنا ہے۔ امیدواروں کو بھی سخت میسج دیا گیا کہ کوئی بھی بدمعاشی کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ امیدوار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سخت انتظامات کی وجہ سے الیکشن پرامن رہے۔ شہر میں ایک پولنگ اسٹیشن پر گنتی کے وقت ایک برادری کے 1500 افراد نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ میں فوری طور پر وہاں پہنچا، انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے بات ماننے سے انکار کیا تو غنڈہ گردی کرنے والوں کی ٹکائی کرنی پڑی۔ مظفر گڑھ پولیس کو لاٹھی اٹھائے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا۔ اس الیکشن میں ان کی جھجک اتر گئی، اور مجرموں کے خلاف وہ پورے اعتماد کے ساتھ کارروائیاں کرنے لگے۔ میں اور ڈی سی سارا دن اکٹھے مختلف جگہوں پر راؤنڈ لگاتے رہے، اور امن و امان کا جائزہ لیتے رہے۔ جن جگہوں کا ہم نے راؤنڈ کیا ان میں کھر صاحبان کا گاؤں دڑا بھی شامل تھا۔
हमारे साथ पुलिस की 1-2 गाड़ियाँ भी थीं। ये दौरा जागीरदाराना ज़हन पर गरां गुज़रा और खर बरादरान ने हमारे दौरे को अपने डेरे पर रेड करार देकर ऊपर शिकायत कर दी। खर बरादरान उस वक़्त हुकूमत पंजाब के चहेते थे, जिस पर चीफ़ मिनिस्टर ऑफ़िस की तरफ से जवाब तलबी हुई और सुखेरा साहब ने अपने असर और रसूख से हालात को सँभाला। इलेक्शन के रोज़ वज़ीर आला मियां नवाज़ शरीफ ने कई शहरों का दौरा किया, जिसमें मुज़फ़्फ़रगढ़ भी शामिल था। उनके साथ चीफ़ सेक्रेटरी अनवर ज़ाहिद साहब और आईजी निसार चीमा भी थे। चाय पर कमिश्नर सुखेरा साहब ने आईजी साहब से कहा, यहाँ तो आपको एसपी लगाने की ज़रूरत ही नहीं। जुल्फ़कार चीमा ने ज़िले को बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। कुछ अरसे बाद शाहिद इकबाल साहब ज़िला के एसपी बनकर आ गए और उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से काम शुरू किया। नाक़िस जमहूरी निज़ाम की बरकतों से नवाबज़ादा रसूलुल्लाह खां को हराकर अता कुरैशी एमएनए बन गया था। अब्दुल हमीद दस्ती मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर से एमपीए थे। मैंने जराइम पेशा नासर के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू किया तो दोनों नाराज़ हो गए। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे, मगर काफ़ी अरसे बाद एक इशू पर मुत्तफ़िक हुए और वो था मेरी ट्रांसफ़र। इस पर दोनों ने मुत्तहिद होकर पूरी लगन और कमिटमेंट के साथ कोशिशें शुरू कर दी। उनकी कोशिशों के असरात एसपी साहब तक पहुँचे तो उन्होंने एक रोज़ मुझे बुलाकर कहा कि अता कुरैशी की मुखालफत तो समझ में आती है, मगर दस्ती साहब आपको तब्दील कराने पर क्यों तुले हुए हैं? ये समझ नहीं आती। मैंने उन्हें बताया कि दस्ती फैमिली के कुछ नौजवान मंशियात में पकड़े गए हैं। दस्ती साहब उन्हें छुड़ाने के लिए मेरे पास आए थे, जिस पर मैंने उन्हें कहा था कि मंशियात फ़रोशों को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंशियात फ़रोशों को ये धंधा छोड़ना होगा या इलाका छोड़ना होगा। गालिबन सरदार साहब एक नौजवान पुलिस अफसर के इस गुस्ताखाना जवाब पर नाराज़ हो गए और उन्होंने अता कुरैशी साहब की तरफ दस्ते ताउन बढ़ाया और दोनों ने एएसपी की तब्दीली के मुकद्दस मिशन पर पूरे जोशो खरोश के साथ काम शुरू कर लिया। मुज़फ़्फ़रगढ़ में मेरी तैनाती 1987 में हुई। उस वक़्त असली तो बड़े खर साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा खार गालिबन जेल में थे, इसलिए उनसे कभी मुलाकात ना हुई। इसके 25 साल बाद 2012 में जब मैं शेखुपुरा डिवीज़न का रीजनल पुलिस ऑफ़िसर था, तो एक दिन मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं मुस्तफ़ा खर बोल रहा हूँ। आप चीमा साहब हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। उधर से फिर आवाज़ आई, मेरा ज़िम्मेदारा ज़िला शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी में है और मैं यहाँ के हालात से वाकिफ़ हूँ। आपने इस ज़िले में अमन-ओ-अमान के लिए जो काम किया है, वो पिछले 50 सालों में नहीं हो सका। मैं ये कॉल आपको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। फिर खर साहब की तरफ से आमों का तोहफ़ा मौसूल हुआ। मैंने लीतो लाल से काम लेने की कोशिश की, तो आवाज़ आई, मैं मिसेज़ गुलाम मुस्तफ़ा खर बोल रही हूँ। हमने अपनी रिवायत के मुताबिक बड़े ख़ुलूस से आपको आमों का तोहफ़ा भेजा है, इसे कबूल करें। अब इनकार करना डिसकर्टेसी में के ज़ुमरे में आता था, लिहाज़ा मैंने खर साहब और उनकी बेगम साहिबा का शुक्रिया अदा किया। मुझे याद है, मुज़फ़्फ़रगढ़ के आखिरी मौसम में भी मेरे दफ़्तर में एसी नहीं था, सिर्फ़ एक कूलर था, जिससे टेम्परेचर कदरे कम हो जाता था। कभी एसी वगैरह की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ज़हन पर एक ही धुन सवार थी कि पूरे इलाके को जराइम से पाक करना है और लोगों को इंसाफ़ देना है। मैं टेनिस का शौकीन था और पुलिस में आने से पहले भी खेलता था, मगर यहाँ सूरत-ए-हाल ये थी कि शाम तक साइलिन का तांता बंधा रहता और किसी एक भी साइल को छोड़कर उठना गवारा न था। इसलिए अक्सर उस वक़्त ऑफ़िसर्स क्लब के टेनिस कोर्ट में पहुँचता, जब 1-2 सर्विसों के बाद ग़ुरूब-ए-आफ़ताब के बायस गेम ख़त्म हो जाती। टेनिस खेलने का शौक तशद्दुद का शिकार रहा, मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि गरीबों और मज़लूमों को रिलीफ़ और इंसाफ मुहैया करने से जो खुशी, इत्मीनान और लुत्फ़ नसीब होता है, वो किसी गेम, फ़िल्म या किसी भी और एंटरटेनमेंट से हासिल नहीं हो सकता। मुज़फ़्फ़रगढ़ की ट्रैफ़िक दूसरे शहरों की तरह ही बेहंगम थी। मैंने बड़ी मेहनत करके उसे स्ट्रीमलाइन किया। मेरे वहाँ से जाने के बाद भी मुझे कई साल तक मुज़फ़्फ़रगढ़ के इंतज़ामी अफ़सरों के फ़ोन आते रहे कि खुली कचहरियों में लोग हमें कहते हैं कि ट्रैफ़िक फिर ख़राब हो गई है, आप उस तरह ठीक करें जिस तरह चीमा साहब ने ठीक की थी। पुराने कुलीग शुगल में फ़ोन करते कि आप यहाँ से जाने के बाद भी हमें हरास करते रहते हैं। एक रोज़ जब मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर में राउंड कर रहा था और एसपी साहब कोटद्दू के दौरे पर थे, वायरलेस के ज़रिए पैगाम मिला कि लोगों की बड़ी तादाद ने थाना शाह जमाल का घेराव कर लिया है। मैंने कंट्रोल रूम को मज़ीद मालूमात लेने की हिदायत की और खुद 2-3 गनमैनों के साथ शाहजमाल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि हवालात में चोरी का मुलज़िम हलाक हो गया है। उसकी लाश थाने के अंदर ही पड़ी है और लोगों का कहना है कि इसे पुलिस वालों ने हलाक किया है। थोड़ी देर बाद एसपी साहब का मैसेज मिला। उस वक़्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे कि मौका पर जाने के लिए पुलिस की मुनासिब नफ़री साथ लेकर जाना मामला संगीन है और लोग मुश्तिल भी हो सकते हैं।
पुलिस की नफरी इकट्ठी करने में वक्त लग सकता था और मैं फ़ौरन मौका पर पहुंचना चाहता था। मुझे ये इत्मीनान ज़रूर था कि लोग चूंकि मेरे काम और साख से वाकिफ़ हैं, इसलिए मुझ पर एतमाद करेंगे। मैं आधे घंटे में शाह जमाल पहुंच गया। बिलाशुबा 3-4 हज़ार अफराद ने थाने का घेराव कर रखा था। मेरी जीप देखकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ ज़ोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी न की। मैं 2 गनमैनों के साथ मजमा को चीरता हुआ थाने के गेट पर पहुंच गया। अंदर चंद पुलिस वाले थे, जिन्होंने थाने का गेट बंद कर रखा था। अब मैं नारे लगाते हुए मजमे से मुखातिब हुआ, "मेरी बात सुनें।" मजमा खामोश हुआ तो मैंने पूछा, "आपको मुझ पर एतमाद है?" कुछ आवाज़ें बुलंद हुई, "हाँ, आप पर एतमाद है। आपकी शोहरत अच्छी है।" मैंने कहा, "इत्मीनान रखें, मुकम्मल इंसाफ होगा। मगर पहले मैं हक़ाइक़ मालूम कर लूँ। इंक्वायरी आपके नुमाइंदों की मौजूदगी में होगी।" मजमा में से आवाज़ें आईं, "हमें मंज़ूर है।" मैंने मजमा में से 3 बुज़ुर्ग आदमियों को मुंतखब करके अपने पास बुलाया और उन्हें साथ लेकर थाने के अंदर चला गया। थाने का मजबूत गेट फिर बंद कर दिया गया। थाने में मौजूद चंद सिपाहियों से अलहदा-अलहदा पूछा, जिन्होंने बताया कि चंद रोज़ कबल चोरी के शुबे में मुलज़िम को बुलाया गया था। एसएचओ मोहम्मद खान ने उस पर तशद्दुद किया था, जिस पर उसकी हालत ख़राब हो गई। इसी हालत में एसएचओ उसे अस्पताल ले गया, मगर डॉक्टरों ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। उसे वापस लाते हुए उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। लाश को थाने की बैरक में छोड़कर एसएचओ कहीं गायब हो गया है। मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर भी तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। मैंने मुतवफ़्फ़ी के वारसों को बुलवाया और उसके भाई की मदइयत में एसएचओ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। बाहर निकले तो तीनों में से एक बुजुर्ग ने मजमे को एसएचओ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होने की इत्तला दी। मैंने उसमें ये इज़ाफ़ा किया कि आप एक मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मगर आपका ये भी फ़र्ज़ है कि आप मुकदमे में भी मज़लूम ख़ानदान का साथ दें और मकतूल के बेसहारा कुनबे की माली इमदाद भी करें। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जब मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ जाने के लिए थाने से निकला, तो मजमा अमली तौर पर छँट चुका था। नौजवान पुलिस अफ़सरों को ये बात कभी फ़रामोश नहीं करनी चाहिए कि जहाँ उन्हें अपनी फ़ोर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वहाँ अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी ज़िम्मेदारी है। जब किसी पुलिस मुलाज़िम से ज़्यादती हो तो उसका साथ दें, लेकिन जब कोई पुलिस अफ़सर किसी शहरी से ज़्यादती करे तो शहरी के साथ खड़े हों। 29 मई 1988 को जनरल ज़िया-उल हक ने बिला वजह असम्बलियाँ तोड़ दीं और जुनेजो हुकूमत को फ़ारिग कर दिया। उसके 1-2 रोज़ बाद मैं दफ़्तर में बैठा था कि खिड़की से एमएनए अता कुरैशी साहब नज़र आए, जो मेरे दफ़्तर के सामने से मुँह छुपाकर गुज़र गए। मैंने अर्दली को भेजकर कुरैशी साहब को बुलवाया, उन्हें चाय पिलाई और कहा, "कुरैशी साहब, आप एमएनए नहीं रहे, फिर भी इस दफ़्तर में आपको पहले की तरह इज़्ज़त मिलेगी। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेंबरान असम्बली का तर्ज़ अमल अगर पब्लिक फ्रेंडली होता, तो जनरल ज़िया के इस गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ लोग सड़कों पर होते।" कुरैशी साहब ने इस बात में सर हिलाया। चंद हफ्तों बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शरिया कोर्स के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई। उस वक़्त ये कोर्स जज साहबान और पुलिस अफ़सरान को इस्लामी कवानीन से रूशनास कराने के लिए कराया जाता था। मेरे लिए ये तब्दीली बड़ी खुश आइन थी। 3 महीने के इस कोर्स के इख्तिताम पर सऊदी अरब का दौरा और वहाँ के अदालती निज़ाम का मुताला और मुशाहिदा कराया जाना था। इस दौरे में ज़िंदगी में पहली बार खाना काबा की ज़ियारत और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। शरिया कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबरान समेत हमारा करीबन 30 अफराद का वफ़द 8 रोज़ मक्का मुकरमा और 5 रोज़ मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर रहा। इस दौरान बहुत सी अदालतों के काज़ी साहबान से मुलाकात हुई। 8 दिनों में कई बार उम्रा करने का मौका मिला। खाना काबा को पहली बार देखने का मंज़र आज तक नहीं भूल सका। 1-2 रोज़ में ही तवाफ़ की सारी दुआएँ याद हो गईं। रात के पिछले पहर या फ़जर के वक़्त अजीब रूह परवर मंज़र होता था। यूँ लगता था नूर इलाही की फव्वार बरस रही है। तवाफ़ के दौरान जब हाथ उठाकर दुआ मांगो, तो वाक़ई ऐसा महसूस होता कि बंदा दरबार इलाही में हाज़िर है और शहंशाहों के शहंशाह के सामने फ़रियाद कुना है। इसकी फ़रियाद सुनी जा रही है और फ़रियाद पर अभी हुक्म जारी हो जाएगा। मक्का और मदीना में पहली हाज़िरी का लुत्फ़ और सरूर कभी नहीं भूल सकता। कोर्स के बाद मैं फिर मुज़फ़्फ़रगढ़ आ गया। अब गर्मी ज़ोरों पर थी। कभी-कभी मैं दुआ करता था कि या अल्लाह किसी ऐसी जगह भेज दे जो इतनी गर्म ना हो। दुआएँ जल्दी कबूल हो गईं और एसएसपी सरगोदा के कहने पर मेरी ट्रांसफ़र भलवाल हो गई। मुज़फ़्फ़रगढ़ के एसपी साहब मुझे फ़ौरी तौर पर रिलीव करने के लिए तैयार न थे। मैं जब भी पूछता तो कह देते, "इतनी भी क्या जल्दी है? आपको रोटी-शोटी खिलाकर भेजेंगे।" और बिल-आखिर वो दिन भी आ पहुँचा। एसपी साहब ने बहुत बड़ी अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जो मेरे लिए हैरान-कुन था, जिसमें पूरी डिवीज़न के अफ़सरान, मेंबरान और शहरियान शरीक थे। मेरे देरीना मेहरबान साबिक़ एमएनए अता कुरैशी साहब और साबिक़ एमपीए हमीद दस्ती साहब पहली सफ में जलवा अफ़रोज़ थे।
میرے تبادلے پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ چہک چہک کر ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مار رہے تھے۔ میں نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے، رول آف لا پر بات کر رہے ہیں، یہی ہمارا پسندیدہ موضوع ہے اور اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہے۔ میں نے کہا، میری جگہ کوئی اور ایس پی آ گیا تو رول آف لا کے ساتھ آپ کی وابستگی اور بڑھ جائے گی۔ خانوادہ کرپشن کے گدی نشین بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے استعفے مانگے تو ہنسی آتی ہے، اور کرپشن جیسے حساس ایشو کو سیاست بازی کے لیے استعمال کیا جائے تو دکھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی فرد کے سحر میں مبتلا ہیں اور اسی کے جیلے یا بتوالے ہیں، ان سے مکالمہ بے سود ہے کہ انہوں نے سوچ کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں، مگر جو صرف پاکستان کا درد رکھتے ہیں اور اس کے بہترین مستقبل کے خواہاں ہیں، اور سیاست میں جن کا رول ماڈل محمد علی جناح ہے، ان سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا اللہ اور حضرت محمد کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی قیادت ایسی ہو کہ جس کے دامن پر مالی اور اخلاقی کرپشن کا کوئی داغ نہ ہو، جو با اصول بھی ہو اور با کردار بھی، اور جس کی نگاہ بلند بھی ہو اور سخن دل نواز بھی۔